different organelles of the cell, है ना? The function of plasma membrane, function of cytoplasm, function of nucleus, न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे हैं, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, देन फंक्शन ऑफ जीन्स, है ना? एंड देन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, then other organelles in the cytoplasm, function of mitochondria, function of Golgi complex or Golgi body, function of endoplasmic reticulum, function of ribosomes, function of centrosomes, function of lysosomes, right? Function of plastids, है ना? फंक्शन ऑफ सेल वॉल, है ना? हाँ, बता रहे हैं बेटा, एडोलेसेंस में भी आ रहे हैं हम लोग, है ना? वी विल इंटर दैट. सो विल बिगिन आवर क्लास, टुडेज क्लास, बाय chanting the shortest name of God, which is Omkaram. So let us join our hands, close our eyes, and chant Omkaram 3 times. Sai Ram, I welcome you again in our class, right? So as we discussed, we have completed cell chapter, है ना? The cell, which is the basic structure of all living organisms. So to begin with, let us do some questions from cell, right, beta? First of all, we'll go for MCQ, multiple choice questions, and then we'll see some questions of very short answer, and I'll show you some questions of short answer and long answer only, है ना? And if we try to give some answers, then we can only see that. So here I'm going to print my screen. Okay. Today, who will guide me? Tell me your name. Anyone? Akshar. Okay, Akshar. Just see to it, beta, है ना? So Yes, sir. हाँ Akshar. What can you see on the screen? Sir, PPT. PPT. Very good. Now, so to begin with, let us have some questions of cell chapter based on MCQ. Okay. So till then it opens. So anyone can differentiate between cytoplasm and protoplasm. Tell me, beta. Cytoplasm and protoplasm. Anyone try, beta? The protoplasm is a mixture of nucleus and Cyto. cytoplasm. Yes, very good, very good. कंबाइन हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म को बेटा. एक्चुअली लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. पूरा पूरा, है ना? ओके. सो हियर सम क्वेश्चंस आर देयर, है ना बेटा? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस. Cells were observed by Robert Hooke in which year? 1665. 1665. So option number A. Shall we go ahead? Yes, absolutely correct. Very good. क्या बात है? The cell wall in plant cell is made up of Cellulose. 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 Very good. Good. Yes. Cellulose. Next question. Which of these is multicellular? Amoeba, paramecium, Monera. mushroom. Monera. देखो मशरूम इज अ फंगस है बेटा, Sir, Monera. है ना? Sir, Monera. मोनेरा में ही तो सारे सब आते हैं, ये यूनिसेलुलर आपको दिखाया था ना. मोनेरा, प्रोटिस्टा, 5 किंगडम नाम है, याद है? बोलो क्या क्या बताया था मैंने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. मोनेरा तो गलत होगा शायद, देखते हैं. आप कह रहे हो ना मोनेरा. लेट अस सी. रॉन्ग आंसर, है ना?
मोनरा यूनिसेलुलर है बेटा। मोनरा तो पहला जो पार्ट है ना, एक किंगडम क्लासिफिकेशन, इसलिए मैंने आपको थोड़ा दिखाया भी था पिछले वाला भी। मशरूम होगा राइट आंसर इसका। मशरूम इज फंगस है, मशरूम ये फंगस। Yes, sir. और दो तरह का होता है, एडिबल और नॉन एडिबल। तो भूल से भी खाने से पहले सोच लेना उसको, है ना बेटा। Yes, sir. एडिबल मशरूम ही खाना है, कई सारे तो पॉइजनस होते हैं, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। द सोर्स मस्ट बी नोन टू अस, है ना। जो सोर्स वेरिएबल है उसको ही यूज करके हमको यूज करना है। वैसे एक रेड मशरूम आते हैं, बहुत ही बेटा हाईली न्यूट्रिशियस है, उसको तो पाउडर करके पता नहीं दवाइयाँ बना करके बहुत सारी कंपनियां आती है ना आजकल, जैसे वो अम्बे तो क्या क्या करके आती है, सब बेचती हैं वो, अब बहुत महंगे मिलती है। नेक्स्ट, which of the following is not an organelle? Sir, plastids. Plastids. अरे प्लास्टिक Sir, तो है plastids. देखो ऑर्गेनल किसको बोलते हैं, पहले समझो। आज ऑर्गेनल बोलते हैं द सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता रहता है, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनल, है ना। गोल्गी बॉडी। ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्म में होता है, गोल्जी बॉडी भी Sir, protoplasm. Protoplasm. प्रोटोप्लाज्म हो गया, इसमें न्यूक्लियस भी आ जाता है ना, Protoplasm. प्रोटोप्लाज्म। ये देखो राइट आंसर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट, which organelle is absent in the animal cell? तो तुम बता दोगे, फटाफट बता दोगे आप लोग। Sir, plastid. Plastid. Plastic. Yes, yes, you are right. Last is right answer. Good. Unit of inheritance is? Cell. नहीं बेटा, सेल अकेला Tissue, tissue. टिश्यू भी नहीं होगा। Sir, Gene. gen. हाँ, is the unit of inheritance. एक्चुअली जीन भी होते हैं किसमें, क्रोमोसोम्स के ऊपर इम्बेडेड होते हैं, और क्रोमोसोम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग क्रोमोसोम जाता है, और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं, एंड जीन्स आर द ट्रेट्स, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट। बेटा मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो एक जीन हमारे सेल के अंदर है, वो रेस्पॉन्सिबल इसके लिए। अगर सर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत गुस्सा आ रहा है तो, मगर कंट्रोल में हमें करना भैया, गुस्सा आ रहा है तो जीन है तो है भैया अपनी जगह पर, लेकिन उसको हम हैंडल कर सकते हैं बेटा अपने तरीके से। लेकिन जीन रेस्पॉन्सिबल है बेटा, वो चाहे बैड क्वालिटी हो, गुड क्वालिटी हो, है ना, हमारे आंखों का कलर ऐसा, सबके लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है। Gene is the unit of inheritance which is transferred from parents to the offspring. Gene. इसको याद कर लो। ये बंद करो बेटा माइक, किसका खुला है ना। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स के फॉर्म में हमें पेरेंट्स से हम तक आते हैं। जैसे मेरे के अंदर मेरी वॉइस पापा से मिलती है ना। मेरी बहुत सारे, जैसे मेरी हाइट आप देखते होंगे, कंपेरेटिव मेरी हाइट तो कम है, ऐसा लगता है कि नहीं आपको, जिसने मुझे देखा है। जिसने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, फिजिकली क्लास में एज कम्पेयर टू जो और हमारे टीचर अपने स्कूल में हैं, उनसे मेरी हाइट कम लगती है। लेकिन मेरे पापा को देखोगे ना, उनकी हाइट अच्छी है। अब मेरी मम्मी की हाइट छोटी बेटा, कम है उनकी, तो हाइट के मामले में मुझे मम्मा का जीन डोमिनेट किया, तो मेरी हाइट नहीं है। ऐसे मेरी बेटी की हाइट देखो कम है, लेकिन बेटी की हाइट अच्छी है, मुझसे भी हाइट लंबा हो गया वो, है ना। तो जो जीन्स हमारे फैमिली मेम्बर्स में आते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कैरेक्टर के लिए, और ये इस पर हमारा कोई वश नहीं है। लेकिन हाँ, आगे चलकर साइंस और टेक्नोलॉजी हेल्प करेगा। जीन्स को आप बैड जीन्स को हटा सकते हो, नए जीन्स को डाल सकते हो, है ना, पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, है ना, वो छेड़छाड़ करके एक नया ऑर्गेनिज्म, जैसे यू ऑल नो, मतलब अभी हमने सेल में नहीं देखा, हाँ अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम लोग दिखाएंगे आपको। क्लोनिंग नाम सुना होगा आपने, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ क्लोनिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लोनिंग से वी डू नॉट नीड दैट रिप्रोडक्टिव सेल की जरूरत नहीं हमें है। फ्रॉम बॉडी सेल से हम न्यू ऑर्गेनिज्म पूरा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें उसको इन द बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग तो हम ग्रोथ कर लेते हैं इन द टेस्ट ट्यूब में, है ना, एक मीडियम में करते हैं, लेकिन फाइनल ग्रोथ के लिए हमें एक लिविंग बॉडी के अंदर डालना पड़ता है उसको बेटा। सेल तो लेना पड़ेगा, लिविंग सेल लेना पड़ेगा, और फाइनल ग्रोथ के लिए डालना पड़ता है उसको। तो
तो जो क्लोनिंग है दैट इज आर्टिफिशियल मेथड बाय विच वी कैन मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ सेल। एक सेल की हम एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, जरा भी डिफरेंस नहीं रहेगा बेटा, ऑल क्वालिटी वही रहेगी। हम टिश्यू की क्लोनिंग कर सकते हैं, ऑर्गन की कर सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम में कर सकते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, है ना। आज साइंस इतना डेवलप है कि हम चाहें तो 11 सचिन तेंदुलकर खड़ा कर दें अपने कहाँ पर, क्रिकेट के मैदान में। सचिन बॉलिंग कर रहा है, सचिन कीपिंग कर रहा है, सचिन मिड ऑन पे, सचिन लॉन्ग लेग पे, सचिन थर्ड मैन पे। हाँ। लेकिन इसकी इसकी मेरा डिमेरिट भी हमारे पास है ना। कोई सिरफिरा साइंटिस्ट होगा, वो किसी आतंकवादी की क्लोनिंग करके पूरी दुनिया को ही खराब कर सकता है। इसलिए जो ह्यूमन क्लोनिंग है ना बेटा, इट इज बैंड। और क्लोनिंग में भी बहुत सारे बेटा इतने वेस्ट बनते हैं ना, कई बार पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती है। जैसे आपने क्लोनिंग किया, आंख गायब है, कान गायब है, कोई हाथ गायब है, मतलब बहुत सारे अभी भी देखते हैं हमारे पास जो नेचुरली जो बॉर्न होते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, तो किसी के बच्चे का हार्ट में छेद रह जाता है। नाम सुना होगा ब्लू बेबी, सुना है नाम आपने? Yes, sir. Yes, sir. उनके Yes, हार्ट sir. वैल्व जो होते हैं ना पूरी तरह बंद नहीं होते हैं, तो उनको ऐसे से मारो मारो तो ठीक बॉडी से फिर ब्लू हो जाएगा बहुत, क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो नहीं हो पाता। तो फिर हालांकि आजकल बहुत से ट्रीटमेंट है। अगर आपकी नॉलेज में कहीं भी ऐसा ब्लू बेबी मिले, या कोई भी बच्चा 18 साल की उम्र तक, 18 साल से छोटा, ठीक है, अगर उसको हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ भेज देना उसको? श्री सत्य साई विद्या विहार इंदौर। समझ आ रहा है? अपना स्कूल के सेंटर मालूम होगा बहुत सारे बच्चों को, इंदौर में सत्य Yes, स्कूल sir. है ना बेटा, Yes, sir. Yes, वहां sir. पर हार्ट सेंटर खुल गया है ना। और अभी तो वहाँ चालू नहीं हुआ है, अभी वहां से गुजरात में ले जाते हैं, लेकिन पूरा उनका अपना एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से ले जाते हैं गुजरात में, वहां से ऑपरेशन करा के लाकर वापस यहाँ सौंप देते हैं पेरेंट्स के साथ में। लेकिन बच्चों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया खर्च नहीं होता पेरेंट्स का। समझ रहे हो? तो इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर आपके नॉलेज में आस-पास होते हैं ना बेटा, बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे होते हैं और वो समझ नहीं पाते क्या हो रहा नहीं हो रहा है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, इस तरह से बता सकते हो कम से कम। ठीक है, ओके। Yes, sir. विच ह्यूमन ब्लड कैन चेंज इट्स शेप? WBC. WBC. WBC, WBC. Red blood cell. वेरी नाइस, WBC है ना, इसको पढ़िएगा, है ना। Yes, sir. टर्म्स हैं, projection which appear and disappear as amoeba moves or feeds. Pseudopodia. 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 Very good. Correct answer. Okay. So you got 8 by 8. All correct. है ना? Under the concept well. एग्जाम प्रिपेयर में हेल्प मिल जाएगा। लर्न समथिंग न्यू। मुझे भी हेल्प मिल गया। कंटेंट फन also good. Right? So now let us look at some very short answer questions also. Very short answer question. Okay. Let us see. हाँ या वेरी शॉर्ट भी देखते हैं बेटा, है ना। देखिए जब हम क्वेश्चन में जाते हैं ना तो कितनी कुछ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बेटा। तो क्वेश्चनिंग भी एक वन ऑफ द वे ऑफ लर्निंग है। और पर्टिकुलरली व्हेन यू क्वेश्चन योर फ्रेंड्स, जब हम आपस में डिस्कस करते हैं ना, तो दैट मेक्स अवर कॉन्सेप्ट मच क्लियर बेटा, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इसलिए अभी भी आपस में आप लोग जब कभी हाय हेलो फोन पे करते हो, जैसे भी, या कुछ लोग आपस में मिल भी जाते हो, जैसे रावगढ़ में आप लोग मिल जाते होंगे, कुमराज में जो लोग बच्चे हैं क्लास वाले मिल जाते होंगे, गेल में जो लोग पढ़ते हैं एक साथ मिल जाते होंगे कहीं पे शॉपिंग में कहीं पे, है ना। तो जरूर भाई दूसरे भाई तुम्हारे भाई खड़ी और फेवरेट फूड चाउमीन है कि क्या है, ऐसे सवाल से घूम फिर करके 2-4 सवाल अपने पढ़ाई लिखाई से भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्योंकि हमारा मेन तो काम ही है। चलिए, सो नेम द ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। Nucleus. हाँ वैक्यूल, गुड वैक्यूल। आंसर इज, ये देखा, आंसर देख लो भाई, आंसर इज वैक्यूल्स। वेरी गुड। ये ब्लैंक क्यों होते हैं? इनका
इनका मेन काम स्टोर करना बेटा, है सर ना? क्योंकि यस सर स्टोर। हाँ, नहीं कुछ तो पानी जमा रखते हैं या वेस्ट को स्टोर करते हैं, है ना? अमीबा में तो सारा काम यही करता है, पढ़े हो ना आप लोग, भूल गए क्या? अमीबा में सारा फंक्शन वैक्यूल के अंदर ही होता है। नेक्स्ट, व्हाई न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल? एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. बोलो, एनीवन कैन ट्राई। Sir, because it holds the information needed to conduct most of cells Activities. It controls functions. all the activities. It controls all the activities of the cell, है ना? पहले नाम बोल दीजिए फिर आंसर बोलिए आप, ठीक है? देखिए आंसर देखिए इसका, as nucleus controls all the activities which occur inside the cell, so it is called brain of the cell, master of the cell. Next question, name the unit of inheritance present in living organisms. जीन्स। Genes. जीन्स। Genes. जीन्स, हाँ जीन्स, स्पेलिंग देख लो, जी मत लगा देना, तो कौन सा जीन हो जाएगा? The पहनने वाला. और एक बार तो बड़ा गजब हुआ बेटा, जीन्स की बात कर रहे थे ना हम लोग, बात कर रहे थे जीन्स की, दो साइंस टीचर हम लोग थे, जीन्स पे बात कर रहे थे, करते करते थे, और कोई दूसरा को बंदा सुन रहा था हमारी बात, तो पूरे जीन्स में उसने वही, अरे जीन्स में ये सब भी होता है, वो पढ़ने वाला जीन्स समझ रहा था पूरी देर तक। सोच लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do the cells of tadpole tail disappear in adult frog? देखो tadpole, हाँ बेटा बोलो, यस। So because of metamorphosis, वो पूरा चेंज हो जाता है. हाँ हाँ, मेटामॉर्फोसिस। जो यंग वन है फ्रॉग का, टैडपोल, एंड द फ्रॉग अडल्ट वन, दे ऑल आर टोटली डिफरेंट इन लुकिंग। छोटे में जैसे हम दिखते हैं, बड़े होकर भी हमारा अपीयरेंस ऐसा ही रहता है, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। जैसे हम लोगों में देखिए, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग में, डॉग में, कैट में, काऊ में, लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं होता। इंसेक्ट में वैसा ही होता है। इंसेक्ट में तो एग से लार्वा निकलता है, लार्वा को देख कर तो बोल ही नहीं सकते ये बड़ा होकर उड़ने वाला इंसेक्ट बनेगा। कितने लोगों ने मटर 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 पीस को ओपन किया है, सीड निकाला, मटर छीले कितने लोगों ने? यस सर, छीला है। Yes, sir. और कभी कभी एक आध मटर जो खराब वाला मटर है ना, सड़ा हुआ, उसको भी छीलने की कोशिश करो तो क्या निकलता है उसके अंदर से? सर इल्ली निकलती है। हाँ, पिंटू। पिंटू एक ऐड आता है टीवी पे, याद आ रहा है आपको? डिब्बे में बंद करता है उसको, उसका नाम रखता है पिंटू। आप भी, अभी मटर का सीजन आ रहा है ना, जैसे पिंटू मिले, दैट इज ए कैटरपिलर है बेटा, लार्वा है वो, तो आप भी एक ट्रांसपेरेंट डिब्बा ले लो, ग्लूकोज खाते हैं, ग्लूकोज डिब्बा ले लो, कोई वैसा डिब्बा ले लो, यस डिब्बे सर। में बहुत सारे होल कर दो ताकि एयर आए जाए, ठीक है? और उसके अंदर मटर के जो छिलके होते हैं ना, उनको पतला बारीक बारीक काट के डाल दिया करो, उसका फूड हो जाएगा वो, और वो खाएगा खाएगा, देखते रहना बीच बीच में, और बढ़ता जाएगा, वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर अच्छे से मेंटेन रहा सब कुछ, टेम्परेचर वगैरह, तो वो इंसेक्ट बन सकता है। आप डब्बा खोलो तो उड़ भी सकता है। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना इसको, है ना? बिल्ली मिल जाए तो उसके ऊपर उसको अच्छे से आराम से घर में, है ना, 7-8 दिनों के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखना आप लोग। यस सर। खाना क्या देना है? वही मटर को फुलके का पतला पतला काट के डाल देना उसके अंदर खाने के लिए उसको। सीधा आंसर। The tadpole's tail shrinks, the lungs develop, and the back legs. Then we have a tadpole जब होता है ना बेटा, तो उसको गिल्स होते हैं उस समय, like all fishes। और हम लोग तो छोटे में बहुत बच्चे थे ना हमारे एज के, तो मछली पकड़ने जाते थे, तो हमारे गांव के पास में नदी है, तो नदी में जब बाढ़ आता था ना, पानी बहता था इधर, जो पतला सा पानी निकलने का सोर्स तो पानी आता था कि घुटना घुटना भर का, तो बच्चों साथ पकड़ते थे, और मछली के बजाय 90% टैडपोल पकड़ते थे।
क्योंकि समझ नहीं आता था कि मछली कौन है और टेडपोल कौन है। तो टेडपोल की बेटा लंग्स लंग्स नहीं होते उस समय, लंग्स धीरे धीरे डेवलप होता है और फिर उसके बैक में भी डेवलप होते हैं, और ट्यूब तो गायब हो जाता है, शरीर धीरे छोटे गायब हो जाती है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, why are nerve cells long and branched both in elephants and rats, or rather all living organisms, multicellular unicellular? Nerve cells, why they Sir, are to long? pass the information. Correct. To transmit information, to transmit messages from one part of the body to the other part, including the brain. See the answer. Since nerve cells help in the transfer of messages. ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है ना, छोटे आंसर होंगे आपके। वन मोर क्वेश्चन, नेम द प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट, Yes, sir. Chloroplast. क्लोरोफिल में, Chloroplast. क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट है बेटा, क्लोरोप्लास्ट है ना। हालांकि प्लांट में दूसरे भी होते हैं बेटा, दे हैव क्रोमोप्लास्ट आल्सो, दे हैव ल्यूकोप्लास्ट आल्सो, बट डिफरेंट पार्ट में। बट लीव्स में मोस्टली ये पूछना चाह रहा होगा, है ना, ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, प्लास्टिड नहीं है। प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, विच इज ए ग्रीन पिगमेंट। और क्लोरोफिल के लिए विच मेटल इज एसेंशियली रिक्वायर्ड? Iron. नहीं, आयरन तो हम लोगों को चाहिए यार। Some manganese. मैग्नीशियम, मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम। डिफाइन टिश्यू, डिफाइन तो बेटा सेल, टिश्यू, Group of ऑर्गन। cells. हाँ, ग्रुप ऑफ सेल्स। और आगे बढ़ाइए इसको, सारे सेल ग्रुप नहीं बनाते, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ डूइंग सेम फंक्शन बेटा, सेम फंक्शन वाले Function. जब से जुड़ेंगे तो तभी तो एक डेफिनेट टास्क कर पाएंगे। अब हम आप मिला लो किसी को भी, क्या कर पाएंगे? जैसे साइकिल बनानी है, तो साइकिल बनाने के लिए अब हैंडल बनानी है, तो जो लोग हैंडल बनाने के एक्सपर्ट हैं वो लोग मिलके बनाएंगे तो हैंडल बनेगी। तो पता चला हैंडल बनाने वाले और उसमें चेन बनाने वाले और एक पेडल बनाने वाले को मिला दिया, तीनों मिलके हैंडल बना रहे हैं, हैंडल बनेगी क्या? नहीं बनेगी। हैंडल बनाने वाले एक्सपर्ट मिलेंगे तभी तो हैंडल बनेगी हमारे, राइट? Yes, sir. A tissue is a group of similar cells performing a specific function. लिख लो नहीं चाहो तो बेटा, छोटे डिफाइन है और बार बार बोलने से हमारे दिमाग में आ जाता है बेटा। सिमिलर सेल्स मिलते हैं, है ना। सेल्स में भी उनकी भी एक स्पेशलिटी होती है, स्पेशल जॉब करने वाले सेल होते हैं। तो कुछ फंक्शन वाले सिमिलर सेल्स मिलेंगे और एक खास फंक्शन के लिए मिलेंगे, ऐसे नहीं मस्ती के लिए मिल रहे हैं, सिर्फ टाइम पास करने के लिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट, राइट नेम एंड साइज ऑफ द लार्जेस्ट सेल। Sir, ostrich. ऑस्ट्रिच एग है ना, और साइज Yes. बताओ। 170. 18 centimeter. 18 centimeter. अच्छा भाई, द लार्जेस्ट सेल द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच मेजरिंग, पूरा डायमीटर बताना पड़ेगा, डायमेंशन 170 मिलीमीटर बाई 130 मिलीमीटर। एक देखो, एक तरफ से लंबा होता है, एक तरफ से, है ना, एक की शेप देख रहे हैं, ओवल शेप होता है, एग गोल नहीं होता मोस्टली, ऑस्ट्रिच भी वैसे ही। ओके, वेरी गुड, है ना। इनको कमेंट देते हैं, अच्छा अच्छा भाई, चलो। और बाकी सिर्फ क्वेश्चन देख लेना बेटा, है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, और उनके आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर डिस्कस नहीं करेंगे। Yes, sir. सिर्फ क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मैं पढ़ दूंगा सिर्फ क्वेश्चंस को आपको, है ना। Let us see that also. In this way you will find that, oh, this I am not knowing, I should practice more on this. हमारे मुंह जब खुल जाता है, इसका मतलब हाँ ये भी अच्छा है, गुड साइन है हमारे लिए, है ना। देखिए क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। साइंस में तो एक कॉमन क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर, क्योंकि साइंस ही हमें रीजनिंग सिखाता है, रीजन देना सिखाता है ना। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल,
क्या लिख देगा? प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, प्लांट्स डू नॉट हैव बोन्स येट हैव रिजिड स्ट्रक्चर। कहीं बोन नहीं प्लांट में है, फिर भी कितना रिजिड होता है। लकड़ी काट के दिखा दो तो। डिफरेंट शेप्स Yes. ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू देयर फंक्शन। जो सेल का अलग अलग शेप है, कोई स्फेरिकल है ना, कोई स्पिंडल शेप का है ना, कोई लॉन्ग और ब्रांच्ड है। तो इन तीनों का आंसर सोचिएगा। ऐसे देख सकते हैं हम, plastids are found only in plant cell because plant cell needs to manufacture their own food by the process of photosynthesis, and plastids are the organelle where the process of photosynthesis takes place, whereas in animals there is no need of, because they depend on others for the nutrition. देखिए, प्लांट्स है रिजिड स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के चलते उनको जो है ना बोन नहीं है, फिर भी हार्ड रहते हैं वो। द शेप ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू देयर फंक्शन। फॉर एग्जांपल, nerve cell are long and branch because they need to transfer the information. You can give another example also, है ना। So now read the question. I'm reading on the question. Compare prokaryotes and eukaryotes. So है ना बेटा, कॉलम बनाकर टेबल बना के लिखोगे, कंपेयर करना है ना। Give differences between cell wall and plasma membrane. Why is unripe tomato green while ripe tomatoes is red in color? Discuss. A cell is the structural and functional. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर का ये मास्टर है बेटा। Write a short note on gene. What are prokaryotic and eukaryotic cells? Write differences between plant cell and animal cell. Okay. And if you want to see some long answer questions, then also you can see some examples. वैसे तो क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। Yeah. Who discovered the cells and how the cells have been discovered? What is the difference between protoplasm and cytoplasm? Name the smallest and the largest cell present in living organisms. Define the term tissues. ये कई 1 2 3 4 क्वेश्चन मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया। तो मोस्टली है ना। Give 2 points differences between unicellular and multicellular organisms. What advantage does an amoeba derive by changing its shape? Describe the structure of the nucleus. You will draw the diagram also and explain its main parts. इसका आंसर देखोगे क्या? देखो, न्यूक्लियस डायग्राम बनाया भी नहीं है, क्योंकि बुक में डायग्राम अलग से नहीं दिया आपका, इसलिए छोड़ दिया। आप डायग्राम अलग से बना सकते हैं न्यूक्लियस का। राइट द फंक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। और फंक्शन को मैं बना दूंगा हॉट्स में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर राइम बना दूंगा, राइमिंग के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, आप पहचान लोगे हाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, functions. In one line you can write on the functions. Mitochondria is known as powerhouse of the cell and it helps in the production of energy. Plasma membrane gives shape to the cell and also regulates the entry and exit of material in and out of the cell. Cell wall gives protection and rigidity to the plant cell. Plastids helps in the process of photosynthesis, gives color to the different parts of the plants. समझ रहे हैं? Leaf green है because of green plastid called chlorophyll. Yes, sir. लेकिन पेटल ऑफ रोज, रोज प्लांट का पेटल, इट इज लाइक रेड और अलग डिफरेंट कलर के हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच प्लास्टिड? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है बेटा। अदर देन ग्रीन कलर कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट देगा। वैक्यूल्स हेल्प्स Yes, in the storage of food, water and sap.
गिव 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। 5 आप 6 पॉइंट लिखना, 3 मार्क्स में आएगा। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एंड ऑर्गेनेल्स इन अ सेल? तो दिया ही नहीं कौन कौन सा पार्ट है। ये था सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल वॉल, क्रोमोसोम्स, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, और गोल्जी बॉडी से बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम। इसको पूरा पढ़ लेते हैं ना बेटा, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, इट प्रोटेक्ट्स द सेल, है ना, एंड गिव्स इट अ शेप। और भी जोड़ सकते हो आप, इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल वॉल, इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स प्लांट सेल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये तो बिल्कुल टंग पे हो जाना चाहिए हमारा, है ना। नेक्स्ट मंथ से आपका शुरू होगा असेसमेंट, तो मैं गूगल फॉर्म से एमसीक्यू ले लूंगा। फिर आपका ओरल क्वेश्चनिंग मैंने सोचा, ओरल क्वेश्चनिंग आपको आपका वीडियो ऑन करा लेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे, फटाफट आंसर देना है। और आंसर देते समय मुझे देखना है, आप इधर बुक नहीं देख सकते, इधर उधर नहीं देख सकते, क्योंकि उसके मार्क्स हैं, उसका बहुत सारा मतलब पैरामीटर है। मैंने क्वेश्चन पूछा, आंसर नहीं दिया, लेकिन आपने आंसर को सोचने की कोशिश किया, आपका जेस्चर कैसा था, हाव भाव कैसा था, तो उससे भी उसके भी मार्क्स होंगे, समझ रहे हो। सिर्फ डायरेक्ट आंसर दिया उसके मार्क्स ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पूछा आंसर दे दिया, बट आंसर देने के पीछे कुछ लॉजिकल है, लॉजिक है, सोचा समझा, या बस सीधा सीधा जो समझ में मतलब बिना सोचे आंसर दे दिया, है ना। तो सारे पैरामीटर्स उसके हैं, ठीक है बेटा। सेल वॉल सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज दैट गो ऑन विद इन द सेल। Chromosomes carry genes which contain all the information needed by the cell to function and to reproduce further cells of next generation. Mitochondria, powerhouse cell, it is called, इसे पूछ सकते हैं, why is mitochondria called powerhouse cell? Why is nucleus called brain of the cell or control center of the cell? ये mitochondria oxidizes food to provide energy. Vacuoles stores food, water and waste. Chloroplast, why is chloroplast called kitchen of the plant cell? और सब कुछ आपके ऊपर, name the organ which is called kitchen of the plant cell and why? Chloroplast. ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, है ना, सब आपके ऊपर। तो दूसरा आंसर दूसरा ले दिया, फिर आंसर तो गया उसका काम से। Contains chlorophyll for photosynthesis. Golgi body secrete substances such as enzymes, एंजाइम सेक्रेट करते हैं बेटा। और यू नो पूरे हमारे ह्यूमन बॉडी से लेकर जितनी भी लाइफ है बेटा, सब जगह एंजाइम का रोल है ना। आपने कितने सारे एंजाइम का नाम सुना होगा जब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। बताइए, व्हिच एंजाइम इज प्रेजेंट इन आवर सलाइवा? सलाइवा में एक एंजाइम होता है which converts starch into simple sugar। नाम याद नहीं आ रहा है, मैं बोलूं? अमाइलेज, नाम सुना होगा आपने। Yes, sir. which is also called टाइलिन भी बोलते हैं उसको, PTYLIN, T साइलेंट है। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, होप यू आर राइटिंग, इसे लिखते जाओ बेटा, अन्य तो वीडियो से लिख लेना बाद में। हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज विद इन द सेल। सेल के अंदर जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है, दैट इज डन बाय द ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी दो तरह के होते हैं, है ना, SER और RER। लाइसोसोम, Yes, sir. सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आप ये मत कहना सर तो बुक में तो है ही नहीं, तो आपने क्यों पूछा एग्जाम में? कि बुक में बेटा इलेबोरेट करने के चक्कर में छोड़ दिया उसने, लेकिन ये सब के बारे में हमें जानना चाहिए, एग्जाम में आएगा। Which cell organelle is called suicidal bag and why? Helps to destroy old cell structure। जो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर पुराना हो गया उसको अपने अंदर लेकर डिजोल्व कर देता है उसको, तो एक तरह से हेल्प करता है। लेकिन बाय मिस्टेक अगर लाइसोसोम्स रप्चर हो गया तो पूरे सेल ऑर्गेनेल्स जो सही सलामत है सबको डिजोल्व करके जैसे आराम कर देगा सेल की पूरे। राइबोसोम्स
मेक प्रोटीन्स और हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सीधा प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनाना होता है, सिंथेसिस एक होता है, क्या वर्ड होता है तोड़ने वाला के लिए, क्या वर्ड होता है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल भी बोलते हैं उसी को, सेंट्रोसोम रेगुलेट सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, याद रखना। प्लांट सेल में नहीं काम, प्लांट में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट। ओके, shall we see some more question? Discuss about nucleus. Same repetition. Draw a well level diagram to show the general structure of a cell. ये इसमें जनरल डायग्राम चाहिए, वो प्लांट एनिमल दोनों का मिक्सअप करके बना सकते हो जनरल डायग्राम में। ओके, so I'm coming to here. Still we have some question you can ask from cell, otherwise we will have the introduction of new chapter. Okay my dear, how many? 19, बस एक में हो गया, 18 of you are present. लोग डांट खिलवाओगे ही मुझे सर से, मैं सर को क्या बताऊं बेटा, कितना बोलते हैं बेटा 10 करो क्लास में। मैंने लिखा भी था, आज पढ़ा होगा आपने, बी रेगुलर एंड पंक्चुअल, शॉर्ट में लिखा था मैंने, पर्पस यही था बेटा, है ना। तो जिनसे जो कंटेंट मिलता है ना उनको बोलना बेटा, सर हैज आस्क्ड यू ऑल टू ज्वाइन द क्लासेज। पर्टिकुलरली बेटा, those who are not joining they will certainly miss something, कुछ information through you, है ना। जब we discuss something ना, कुछ आपके माध्यम से, कुछ मेरे माध्यम से, something we learn and that learning becomes permanent, है ना। जानकारी ऐसे भी हम लोग प्राप्त करते हैं, पढ़ लेते हैं कहीं से, but when we discuss it goes into our brain and the neurons they are rearranged। लर्निंग जो होती है ना बेटा, स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे कोई मेसन को देखा है, मेसन जो वॉल बनाता है तो क्या करता है, एक ही बार पूरा वॉल खड़ा करता है क्या? किसने देखा है काम करते मेसन को वॉल बनाते हुए? एनीवन कैन शेयर विद मी? सर वो एक एक करके करता है। हाँ, पहले एक मेरे घर पे तो हो ही रहा है सब। हो रहा है, देखो तो देखना, उसको ऑब्जर्व करना, रो वाइज एक एक रो करके काम करता है बेचारा, एक रो बनाता है तो दूसरा रो, तीसरा रो, स्टेप ओवर स्टेप। ऐसे हमारी लर्निंग भी होती है बेटा, लर्निंग भी हमारी लेयर ओवर लेयर होती है, और जो लेयर जितनी लंबी में टिकाऊ होती है ना, उतना हम रिकॉल कर पाते हैं उतना अच्छा से। तो जितना रिविजन हम कर पाए, जितना डिस्कशन कर पाए, दैट इज गुड फॉर अस। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। थोड़ा इंट्रोडक्शन आज करेंगे, एंड before I start the new chapter, we all know better, we all are living organisms, and we have just now learned that we all are made up of cells, and from one cell more cells are formed. By which process? By the cell division। मैंने पिछली बार कहा था आपको पढ़ने के लिए, है ना, डिफरेंट मेथड बाय विच सेल डिवाइड्स। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय, बोलो बेटा रंजन, सेल डिवीजन के मेथड्स बताइए। एनीवन? एम आई ऑडिबल? राधिका? सर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। माइटोस वो तो नहीं बेटा, वो तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना। आपने पढ़ा था अभी सेल चैप्टर में, एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो एक सेल से ही हम सब ऐसे पूरा बनता जा रहा है, और अभी भी मैं सागर मिश्र दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा भी जन्म एक सेल से हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स before that one cell was formed, I was formed with two cells। पहले दो सेल, है ना, one came from my father, one came from my mother, and दोनों यूनाइट होकर बनाया सिंगल सेल और स्ट्रक्चर, जिसको हम ज़ायगोट बोलते हैं। एंड फ्रॉम दैट ज़ायगोट रिपीटेडली सेल डिवीजन टेक प्लेस, बार बार सेल डिवीजन होकर फ्रॉम वन सेल मेनी अदर सेल्स आर फॉर्म्ड, बॉल ऑफ सेल्स। फिर बॉल ऑफ सेल बनने के बाद में आपने पढ़ाना भी, जो सिमिलर फंक्शनिंग वाले सेल हैं, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूनाइट हुए, टिश्यूज बना,
फिर टिश्यू से ऑर्गन बना, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना, जिसको हम फीटस बोलते हैं। फीटस के फॉर्म में वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स, मेरे हाथ, मेरे आँख, मेरे नाक, मेरे कान, आप पहचान सकते हो उस समय। और फिर फीटस जो है वो और ग्रोथ करता हुआ फाइनली आई एम बोर्न एज सागर मिस्त्री, बट नॉट इन दिस फॉर्म इन माई चाइल्डहुड, राइट। तो ये पूरा चैप्टर हमारा हमारे ऊपर ही है, हम अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन विच इज वन ऑफ द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस विदाउट विच द कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीसीज इज नॉट पॉसिबल नेचुरली, है ना। आज हम क्लोनिंग से भले बहुत सारे बना कर रख देंगे, थ्रू क्लोनिंग यू कैन मेक मिनी सागर मिस्त्री, थ्रू क्लोनिंग, है ना, नाम सुना होगा आपने, द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल, है ना बेटा, शीप। शीप कहता है ना, नाम क्या था उसका? डॉली, करेक्ट, डॉली, डॉली, डॉली नाम रखा था उसका, है ना। यस कहाँ सर, हुआ था? डॉली, यस पूरा उस चैप्टर में पूरा सर, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में, हाँ स्कॉटलैंड, पूरा पूरा एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, जरूर पढ़िए उसको आप लोग, है ना। एक्स्ट्रा सर इसी बुक में है। हाँ इसी बुक में, इसी चैप्टर में है, आपका पूरा बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो अगेन आई एम प्रेजेंटिंग ऑफ कोर्स, सो आई एम स्विचिंग ऑफ, राइट। अक्षर देखना बेटा, राइट। नाउ they are going to introduce chapter number 9 है ना, reproduction in animals. यस सर। You can see on my introduction page. Yes. You can nowadays I have started putting some figures related to that chapter. उस चैप्टर कुछ फिगर्स में डालने की कोशिश करता हूँ शुरू में ही, आपको देख करके कुछ अंदाजा लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। समझ आ रहा है? पिक्चर से देखने समझ आ रहा है, कहते हैं ना। यस सर, आ रहा है। तो पहले सवाल उठता है, बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एज आई टोल्ड यू बेटा,